सुन, तू CAT प्रिपरेशन कर रहा है रही है ना, then I have something to tell you. CAT is not just for toppers. CAT is for those people as well जिनकी मॉक से पढ़ती है, मैथ से डरते हैं, आरसीज पढ़ते टाइम नींद आती है, एंड पीपल हु थिंक दे आर एवरेज स्टूडेंट्स, उनसे होगा नहीं, प्रोफाइल वीक है मेरी. These are all excuses. CAT is for everyone, right? I'll tell you one story about a very close friend of mine. She scored around 65 something in maths in class 10. उसका तो उसने आर्ट्स से ली. Then she went into, I think, BA करी थी उसने, and she scored 98% in CAT 2024, and now she's sitting inside one of Blackie IIMs. So you see the progression. So now you guys must be wondering how she did it, what coaching did she use, what tricks did she use, कोई secret tips, कुछ उसने क्या करा जिससे उसकी 98% आ गई, even though she was from a BA background. So I'll tell you, there is no secret tip. The only thing that matters is your self-belief, your discipline, your grit, your focus and your willpower. अगर ये सब आप में है तो no one can stop you from getting a 99%. The thing is, ये पूरा preparation journey it gets kind of repetitive. Daily उठ के same routine follow करना. If someone is doing a job, आपका like 9 to 5 उसके बाद आके पढ़ना, थक जाना, फिर भी daily next day उठ के same चीज वापस करना, that is very tough. And to the people who say that CAT is a very tough exam, I have something to say to them. Tough exam आप उससे बोल सकते हो जिस exam के बारे में you can predict. Right, JEE Advanced, you know, tough paper आएगा. JEE Advanced is tough, but CAT is very unpredictable, and you can use that unpredictability to your advantage. Because see, you don't have to solve 100% of the paper. You just have to solve 50% आप कर दोगे. In CAT 23, 45%, 40% paper solve करने पे you getting a 99%, right? So you don't have to solve the entire paper. 100% paper solve नहीं करना है, and this is where a lot of people have a lot of problems. They run behind perfection. You don't have to run behind perfection. Right now you're sitting inside the CAT examination and you're giving the paper, right? ऐसा नहीं आपने RC पिक करा, RC के 4 क्वेश्चन होते हैं. अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, then leave that question and move on to the fourth question. Okay, right? CAT में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? Around 76, 78 आते हैं. Around 76, 74 आते हैं. So you only have to solve around 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ देम एंड यू सॉर्टेड. उसमें आपकी 99% कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से. देखो, ये तो बात हो गई CAT एग्जाम की. नाउ कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट, एवरी स्टूडेंट जर्नी इज वेरी डिफरेंट. कोई फ्रेशर होता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है, किसी के पास 6 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए डेली, किसी के पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कंपैरिजन नहीं करना है. कंपैरिजन विल ओनली गिव यू प्रेशर, स्ट्रैटेजी नहीं देगा वो. Okay, now what I want you to do is, every one of you who's watching the video, think of a reason why you want to give CAT. Do you want to give CAT for yourself? Do you want to give CAT for your parents? Do you want to give CAT for a better life? Do you want to give CAT for a better job, higher paying job? या फिर आपकी domain में आप like let's say you're in tech, आपको tech पसंद नहीं आ रहा है, you want to switch your job domains, आपको उसके लिए CAT देना है, वो किसके लिए CAT देना है, right? Think of that particular reason and emotionally connect yourself to that reason. Because see, आप जब mocks दोगे, आप जब preparation करोगे, बहुत टाइम आएगा जब आपको motivation, like I said about my friend, पूरा repetitive routine होगा, motivation जाएगा, discipline जाएगा, right? So उस टाइम पे you have to think of this reason, you have to stay emotionally connected to this reason कि आपको CAT क्यों देना है, आपका main purpose क्या है CAT देने का. Because mocks का score बहुत fluctuate करेगा. Like I've said in my previous videos, मेरे CAT के एक हफ्ते पहले mock में 85% आए थे. And in CAT 2024, I scored a 99.57 percentile. 85 percentile सिर्फ एक हफ्ते पहले मॉक में आए थे मेरे. राइट, सो ऐसा मॉक्स का स्कोर बहुत फ्लक्चुएट करेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा. सो इन दीज टाइम्स आई वांट यू गाइज टू थिंक ऑफ दैट वन रीजन व्हिच यू हैव थॉट. उससे अपने आप को कनेक्ट रखो एंड उससे मोटिवेशन ड्रॉ करो. राइट, मैं आई विल टेल यू मैं कैसे मोटिवेशन ड्रॉ करता हूं. मोटिवेशन मोर सॉर्ट ऑफ, आई वोंट रिकमेंड दिस टू एनीवन, बट दिस वाज माय वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर CAT एंड कीपिंग माई सेल्फ डिसिप्लिन. मोटिवेशन भी थोड़ी बहुत मिलती थी बट डिसिप्लिन ज्यादा रखता था. आई वाज थिंकिंग कि मैं CAT दे रहा हूँ इस साल, अगर मैंने इस साल पूरी मेहनत नहीं लगाई, इस साल पूरा लाइक यू नो इफ आई डोंट पुल थ्रॉटल एट CAT, पूरे अच्छे से लाइक यू नो 100% नहीं दिया मैंने अपना, तो मुझे एक साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा. एक साल मेरा लेट होगा, टाइम जाएगा मेरा, रिसोर्सेज जाएंगे मेरे, फिर मैं वापस CAT दूंगा. सो आई डिडंट वांट दैट. मुझे था कि यार मैं इस साल CAT दे रहा हूँ, इस साल CAT निकाल देता हूँ, वापस एक साल मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई रादर डू व्हाट 6 months ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से दैन 18 months ऑफ प्रिपरेशन अलॉन्ग विद टाइम जाएगा मेरा, MBA भी एक साल लेट होगा मेरा, जॉब भी एक साल लेट लगेगी, सैलरी भी एक साल लेट आएगी. These were all the kind of things which were going on in my head when I was giving CAT and during my preparation. And मैं अब आप सबको एक रियल चीज बताता हूँ. काफी स्टूडेंट्स होते हैं, काफी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इधर उधर भागते थे. स्ट्रैटेजी बता दो भैया कि मैं कैसे अप्रोच करूँ क्वेश्चंस को, BR से कैसे करूँ, LID कैसे करूँ, कौन कैसे करूँ. I'll tell you one thing, सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है. अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ. इट इज वेरी हेल्पफुल, राइट, कि आप कोई टॉपर की स्ट्रैटेजी सुन रहे हो तो आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट इट इज वेरी डिफरेंट फॉर वेरी
different people, right? Let me talk about BRC. BRC में 40 minutes मिलते हैं, 4 RCs. Every RC has 4 questions, total 16 questions for 8 questions भी है, right? तो बहुत लोग होते हैं कि माइंड मैप बनाओ, उसकी पैरा समरी लिख लो छोटी सी, फिर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो वरना आपकी होगी नहीं. Essentially आपको 40 minutes मिलेंगे कैट में. 40 minutes में have to solve 4 RCs, 8 weak questions. Like I said, perfection के पीछे नहीं भागना है. We don't have to solve 100% on the paper. 50% भी करेंगे तब भी we'll get 99%, right? तो फिर अगर आप BRC में if you solve what 15 questions right, you'll be at 99.3%. 15 questions. Let's say you solve 12 questions right, you'll be at 98%. Which is good enough for most of the people. तो आपको सारी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, you just have to find the right amount of right set of question जो आप कर सकते हो. And essentially आपको उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही काम आएगी, आपको आपकी वोकैबुलरी भी काम आएगी टू सम एक्सटेंट. बट जितना प्रेशर में कर पा रहे हो, कितना आप समझ पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, देन यू विल बी एबल टू डू इट. इफ यू डोंट हैव द बिलीव कि मैं कर पाऊंगा, देन डेफिनेटली नहीं हो पाएगा फिर. तो कैट में लाइक टॉकिंग अबाउट द बीआरसी सेक्शन, व्हाट आई डिड वाज कि मैं बहुत सारे आरसीज बहुत सॉल्व करता, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग कैट 25, राइट? अभी आपके पास टाइम काफी कम है. व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्किप टू द आरसी पार्ट. हिंदू ट्यूटोरियल्स पढ़ना जरूरी नहीं है, नॉवेल्स पढ़ना जरूरी नहीं है. क्या जरूरी है कि आप कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो और कितने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. तो लाइक आई सेड, आई वाज शेयरिंग माय स्ट्रेटजी. मैंने क्या करा था, आई डिडंट रीड एनी एसेज, आर्टिकल्स नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था. आई जस्ट हेटेड रीडिंग. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ आरसीज. सिर्फ आप आरसी सॉल्व करो बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज अ डिफरेंट स्किल. दैट इज अ स्किल दैट यू नीड. उसका डूइंग द क्वेश्चंस, सीआर क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्किल. वो आपको इओन एसेज पढ़ के नहीं समझ में आएगा बिकॉज उसमें क्वेश्चंस नहीं होते. तो व्हेन यू सॉल्व आरसीज, उसके बाद ही आपको वो स्किल आएगी, राइट? डेली के 3-4 आरसी का टारगेट रखो, 4 आरसीज करो. वी हैव अराउंड 4 months टू कैट, 120 days, 480 आरसीज आप कर लोगे. एंड एज फॉर डीएलआर, इसका भी काफी मिथ बना रखे है कि डीएलआर इज वेरी टफ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, या फिर लाइक मुझे पजल्स मैंने कभी सॉल्व नहीं करी तो मैं कैसे सॉल्व करूं. जस्ट लिसन, इफ यू आर सॉल्विंग 4 DI सेट्स अ डे, 4 DLR, 2 DI, 2 LR सेट्स अ डे, टोटल 4 सेट्स अ डे, एंड आप 120 days तक आप डेली करो, यू वुड हैव सॉल्व 480 सेट्स. प्लस सेक्शंस आप जो अलग से दोगे, मॉक्स जो अलग से दोगे, उसके अलग से. सो 500+ सेट्स, 500+ सेट्स आपने सॉल्व कर लिए, खुद से अच्छे से सॉल्व करे, तो नो वन कैन स्टॉप यू अगेन फ्रॉम गेटिंग 99%. दैट इज फॉर श्योर. आप लिख के ले लो. ऑल्सो DLR सेट सॉल्व करने का एक तरीका होता है, टेक्निक दैट यू हैव टू फॉलो. ऐसा नहीं यू सॉल्विंग अ सेट एंड लेट्स से 10 minutes आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट? आपसे सेट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने सॉल्यूशन लिख लिया जाके. दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू बिल्ड ग्रिट, राइट? उस पर लगे रहो 30 minutes, 1 घंटा. मैंने 1 घंटा लगाया एक सेट पे. बट जब आपसे वो सेट सॉल्व होगा 1 घंटे बाद, the kind of achievement and the feeling of success that you feel, that is totally different. And जो उस सेट से जो आप लर्निंग लोगे, जो आपने खुद सॉल्व करा है, जो आपका दिमाग चलेगा, that is totally different. वो आपको कोई और चीज दे ही नहीं सकती. So develop it right now. You guys have time, have that much time कि आप 1 घंटा लगा सकते हो एक सेट पे, ठीक है? Now specifically coming to cons, PYQs, sectionals and mocks. These 3 should be your best friends. My 30% preparation was from PYQs only, and 2 questions in my slot. I was in CAT 24 slot 2. उसमें 2 questions exact same to same उठ के from previous year मेरे slot में आ गए थे. And I remembered their answer because I had already saw the PYQs a lot of times. Because मेरी 30% preparation PYQs से थी. I solved all the PYQs 2018 से 2023 तक के 2 times. तो मुझे याद थे almost सारे answers. मैंने 2 टिक कर दिए. And in under 10 seconds I got 6 marks. And 6 marks is the difference between a 95 and a 97 or 98 percentile. 6 मार्क्स से आप 90% से 95% तक जा सकते हो. दैट्स द डिफरेंस. PYQs आपको दे सकते हैं बिकॉज 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के आगे मेरे स्लॉट में, तो इजी 6 मार्क्स मिलते हैं. चलो ये तो हो गया. उसके बाद देयर इज वन थिंग व्हिच विल हैपन टू प्रॉब्ली ऑल ऑफ यू, मेरे साथ भी हुआ था, इज दैट यू विल फील लोनली. नॉट टुडे, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, यू विल फील लोनली इन योर कैट जर्नी बिकॉज डेली वो रूटीन फॉलो करना, रिपीटेटिव वही सेम चीजें. एंड यू विल सी योर फ्रेंड्स चिलिंग इन गोवा, उनकी आप स्टोरीज देखोगे and आपको लगेगा am I missing on something, and the answer will be yes, you're missing on something, right? But ask yourself this question, is it worth it? When you're sitting inside an IM, would it be worth it? Would it be worth that Goa trip? Would it be worth those 7 days of fun, 4 days of fun? Would it be worth it? जब आप IM अहमदाबाद में बैठे हो, IM कलकत्ता में बैठे हो, when you're sitting amongst the top like cream of the country, do you think would it be worth it? And also one personal advice, the sooner you deactivate your Instagram, the better it would be for you, because I used to use a lot of Instagram. मैं stories वगैरह देखता था friends की, अपनी reels scroll करता था. I'm pretty sure a lot of you must do the same, right? So जितना जल्दी आप कर दोगे, एक तो आप FOMO से बचोगे, you're studying at home, then आपको friends की stories दिख रही है, बहुत FOMO होगा, बहुत demotivation होगा, you'll be thinking कि मैं क्या कर रहा हूँ
लाइफ में, ये लोग मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हो गई, उसके बाद रील्स स्क्रॉल करके बहुत टाइम खराब हो जाता है, एवरीवन नोस, राइट। तो the sooner you deactivate द बेटर इट बी फॉर यू। इट वाज जस्ट अ पर्सनल सजेशन, क्योंकि मैंने करा था, मुझे काफी हेल्प कर रहा था। आई इवन आस्क्ड माय फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने भी करा था, इट हेल्प देम एज वेल। So it's a very personal recommendation if your livelihood depends on Instagram, या फिर आपको नहीं करना, if you think you can manage or your screen time is not that high on Instagram, then you can just ignore it. But if it is, go and check your screen time अपने फोन पे जाके, सी आप कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिमूव दैट पर्टिकुलर ऐप इफ इट इज नॉट प्रोडक्टिव। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ यू टेक पेन यू वोंट गो मच अहेड। दैट इज नॉट अबाउट सैक्रिफाइसेस, मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं। एक सैक्रिफाइस करो टू सम एक्सटेंट, पेन लो टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं पूरी सोशल लाइफ आपने छोड़ दी, पूरा जो भी आपकी हॉबीज आपने सब कुछ ही छोड़ दिया, बिकॉज कैट इज नॉट जेईई एडवांस। कैट में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कैट इज जस्ट टेस्टिंग योर बेसिक्स। आई नो इट इज वेरी इजी सेइंग कि कैट बस बेसिक्स टेस्ट कर रहा है, कैट के क्वेश्चन टफ होते हैं, बट कैट इज नॉट दैट टफ, ट्रस्ट मी गाइस। क्योंकि आपको 100% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, यू हैव टू सॉल्व 40 to 50% एंड यू विल बी सिटिंग एट 99% इजीली। सो इतना पेन नहीं लेना है। 5 पेंडिंग टेस्ट है, 5 पेंडिंग मॉक्स है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। यू डोंट हैव टू रन माइंड परफेक्शन। ऐसा नहीं मेरे रह गए टेस्ट तो मुझे करना ही करना है, ना यू आर बीटिंग योरसेल्फ ओवर इट अगेन एंड अगेन कि 5 टॉपिक टेस्ट पेंडिंग है, मैंने नहीं करे, लीव इट। परफेक्शन के पीछे मत भागो। व्हाट यू हैव टू डू इज डेली के जो टारगेट्स है, दिन के 3-4 आरसी, 3-4 डीएलआर सेट, जो आपके कॉन्ट के क्वेश्चंस है वो करो, क्लासेस हैं क्लासेस करो, टॉपिक टेस्ट वो करो, डाउट्स क्लियर करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड ट्रस्ट मी गाइस, कंसिस्टेंट रहो, यू कीप डूइंग दिस एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू सिटिंग इनसाइड द कैट एग्जामिनेशन, आपके सामने कैट की स्क्रीन है और आपके सामने सारे क्वेश्चंस है, आपको डेफिनेटली ये फील होगा यार ये तो मैंने पहले कर रखा है, आई कैन इजीली डू इट। उससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा एंड हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस and self belief in the CAT exam is of utmost important। उतना अगर है तो I'm telling you, I know people जिनके आज तक मॉक में 95% क्रॉस ही नहीं करा और वो एक्चुअल CAT में 99.7 99.8 लाए हैं। लाइक मैंने बहुत बार बोल दिया ये बात कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, ग्रेड, फोकस, डिसिप्लिन, दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ टेम्पररी थिंग, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दीज 5 थिंग्स यू हैव टू हैव इन योरसेल्फ। बाकी जो साइड में आपका जो प्रिपरेशन है वो तो करनी है एंड जब रिजल्ट आएगा, व्हेन यू हैव द स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू, either you'll be the winner, even if you're not, you'll know that you gave it your best, you'll be satisfied with yourself, you'll know कि मैंने अपना सब कुछ दिया है, I couldn't have done anything more, and this is what real success is guys। I hope you enjoyed this video। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो अलजेब्रा प्लेलिस्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है। ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है, बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।